students, welcome to Shri Sid Vidyapeeth School. I hope you are all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin a new chapter, Sachin Tendulkar, the Master Blaster. In this chapter, we are going to read about Sachin Tendulkar's autobiography. It's an extract taken from his autobiography. In this story, we are going to read about his early days of training in Mumbai under his coach Archikar sir. So we're gonna know a lot more about him in this extract, from this extract. So let's begin the chapter. Students, kindly use your prescribed textbook for better understanding. To clear any confusion from this video is not so clear, so better use your prescribed textbook for better understanding. Sachin Tendulkar, the Master Blaster. Before beginning the chapter, we're gonna read the 2 lines above. Read this extract from Sachin Ramesh Tendulkar's autobiography, Playing It My Way. Here Sachin talks about his childhood and his first meeting with his mentor Ramakant Achekar. So हम लोग ये जो एक्सट्रैक्ट है ये सचिन रमेश तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे से ली गई है ये एक्सट्रैक्ट, और इसमें हम लोग जानेंगे उनके चाइल्डहुड के बारे में और उनकी पहली मीटिंग उनके मेंटर रमाकांत आचेकर के साथ, कैसे वो क्रिकेट सीखे. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television. In our games, I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend V.V. Richards. सो वो बता रहे कि उन्हें बहुत अर्ली एज से क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट था. वो बचपन में टेनिस बॉल के साथ क्रिकेट खेलते थे अपने कॉलोनी के दोस्तों के साथ, और उन्हें क्रिकेट देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. टीवी पर सारे गेम्स में से उन्हें क्रिकेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है. और वो क्रिकेट को मतलब वो ट्राई करते थे कि वो किसी के जैसे खेले. उन्हें जैसे ये प्लेयर्स हैं, उनके फेवरेट प्लेयर्स हैं सुनील गावस्कर और वेस्ट इंडियन के लेजेंड विवियन रिचर्ड, उनकी तरह उन्हें खेलने का बहुत ज़्यादा शौक़ था. वो अपने आप को उनके तरह एडमायर करते थे, उन्हें उनकी तरह खेलने की कोशिश करते थे. But it wasn't just the batsman that I studied. I also loved bowling and tried my hand at different kinds of deliveries. Medium pace, off spin and leg spin, all with a tennis ball of course. बट उन्होंने सिर्फ बैट्समैन के बारे में ही पढ़ाई नहीं की, उन्हें बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, उन्हें बॉलिंग करना भी बहुत ज़्यादा पसंद था. और वो कई तरह के बॉलिंग डालने की तरीका सीखे थे, लाइक मीडियम पेस, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, और ये सारी चीज़ वो किससे सीखे, वो ये सारी चीज़ टेनिस बॉल से ही सीखे. I even experimented with tactics like the slower ball and bowling from wide of the stump. और उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी किया, लाइक स्लो बॉल डालना, बॉलिंग फ्रॉम मतलब वो स्टम्प के वाइड से कैसे बॉलिंग करना है, बहुत सारे तरीका उन्होंने सीखा. थ्रू आउट माई करियर आई हैव एक्चुअली bowled a lot in the nets. वो उनकी पूरी करियर में वो ज़्यादा बॉलिंग नेट्स में प्रैक्टिस करते थे. As soon as I had finished with my batting, I would pick up a ball and start bowling to whichever batsmen were around at the time. जैसे उनकी बैटिंग ख़त्म हो जाती थी नेट प्रैक्टिसिंग में, वो तुरंत बॉल के साथ बॉलिंग करना शुरू करते थे, और वो उनके सामने कोई भी बैट्समैन हो उन पे वो ट्राई करते थे बॉलिंग करना. The transition from playing with a tennis ball to playing with a cricket ball happened under the watchful eyes of Ramakant Achekar, the cricket coach at Shardashram Vidya Mandir School. So ये जो ट्रांसिशन उनका टेनिस बॉल से खेलना क्रिकेट का, वो कब से उनके जो मेंटर है रमाकांत आचेकर, वो बहुत दिनों से मतलब बहुत ही दिनों से उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे. The transition from playing with a tennis ball to playing with a cricket ball happened under the watchful eyes of Ramakant Achekar.
अच्छा, इनका जो ट्रांजिशन है, मतलब टेनिस बॉल से खेलना और फिर उसके बाद क्रिकेट बॉल तक जाना, ये पूरा किसके अंडर उन्होंने सीखा? उनके कोच रमाकांत आचेकर, द क्रिकेट कोच एट सदाश्रम विद्या मंदिर स्कूल। उस स्कूल के कोच रमाकांत आचेकर के अंदर इन्होंने ये सारी टेनिस बॉल से लेके क्रिकेट बॉल तक का जर्नी उनके अंडर वो सीखे। Achikar sir, as I refer him, started playing cricket at the age of 11 in 1943. आचिकर सर जो थे, वो जिन्हें सचिन मेंशन कर रहे हैं यहाँ, वो कब से क्रिकेट खेलना शुरू किए हैं? उनका एज जब 11 था 1943 में, तब से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिए, विच इज़ द एज आई वॉज व्हेन आई वेंट टू हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। और उतनी एज मेरी भी थी जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गया था। अच्छा, सचिन की एज भी 11 ईयर्स ही थी जब वो पहली बार क्रिकेट सीखने उस कोच के पास गए थे। He played for a number of Mumbai clubs including the Gulmohar Mills and Mumbai Port, and played a first class match for the State Bank of India against Hyderabad in 1963. उन्होंने बहुत सारी मैचेस खेली हैं, बहुत मतलब मुंबई क्लब्स इंक्लूडिंग द गुलमोहर मिल्स, मुंबई पोर्ट, ये सारी उनके क्लब्स के नाम हैं जिनके लिए वो खेलते थे और बहुत ही फर्स्ट क्लास खेलते थे। उन्होंने एक मैच खेला था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हैदराबाद में 1963 में। When I was growing up, he was undoubtedly one of the most accomplished coaches in मुंबई। और जब सचिन बड़े हुए तब तक ये जो कोच थे रमाकांत आचेकर, वो मुंबई के बहुत ही बेस्ट कोच माना जाते थे। From his own school days at Balmohan Vidya Mandir, my brother Ajit knew that compared to other schools in Mumbai, Shradashram was by far the best organized in its approach to cricket. That's why he took me along to Achikar sir's nets in Shivaji Park to try my luck at being a part of his summer camp. So उनके ब्रदर, अच्छा उनके स्कूल डेज उनका स्कूल डेज का बलमोहन विद्या मंदिर, सचिन के ब्रदर अजित जो है उनके स्कूल को उस स्कूल से कंपेयर करता था। और सदाश्रम जो स्कूल था वो बहुत ही बेस्ट था, मतलब ये ऐसे क्रिकेट ऑर्गेनाइज करने में एकदम बेस्ट स्कूल माना जाता था। इसीलिए उनके ब्रदर ने सचिन को आचिकर सर के पास लेकर गए थे, जहाँ नेट प्रैक्टिसिंग के लिए शिवाजी पार्क में। और वहाँ बोले कि सचिन अपना लक ट्राई किए और उन्हें समर कैंप का पार्ट भी बनाया गया। किसने? आचिकर सर ने। Anyone could come for a trial at the camp, but then it was to sir to decide who to accept. अच्छा, तो कोई भी समर कैंप में ज्वाइन हो सकते थे, पर ये सर डिसाइड करते थे कि वो किन्हें चूज़ करे, वो किन्हें एक्सेप्ट करे। There was nets for players from all age groups, starting with the sub junior under 15, junior under 17 levels. और उस उस कोच के पास सारे एज ग्रुप्स के प्लेयर्स के लिए नेट्स थी। और वो एज कहाँ से शुरू होती थी? सब जूनियर अंडर 15, मतलब 15 से बिलो, एंड जूनियर 17 से बिलो, मतलब पूरे जूनियर बच्चों के लिए उनके पास पूरा नेट तैयार था। आई वॉज 11 years old and trialed at the सब जूनियर नेट्स टू स्टार्ट विथ। सचिन 11 ईयर्स के थे और वो सब जूनियर्स के नेट में प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे। द मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन हैड एन अंडर 15 टीम एंड मोस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम द सब जूनियर सेक्शन इवेंचुअली वेट फॉर अ पोजीशन इन दैट टीम। और मुंबई की क्रिकेट एसोसिएशन ने अंडर 15 की टीम एक थी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट सब जूनियर सेक्शन से थे और उसमें बहुत सारी पोजीशन थी इस टीम के लिए। I had never batted in nets before and felt somewhat overwhelmed with so many people around when I was asked. मैं पहले कभी नेट्स में बैटिंग तो नहीं की थी क्योंकि उन्हें तो बहुत ज़्यादा बॉलिंग में इंटरेस्ट थी। और उसके बाद जब उन्हें बोला गया था कि आपको मतलब उन्हें जब पूरे पीपल के सामने खेलना पड़ा, पूरे ऑडियंस के सामने, तो वो उन्हें थोड़ा अजीब फील हुआ। When I was asked
to bat, I was not at all comfortable with sir watching me so closely. जब उन्हें पूछा गया था कि आपको पूरे ऑडियंस के सामने बैटिंग करना है, तो उन्हें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे सचिन खेल उनके सर के, स्पेशली उनके सर के सामने खेलना, क्योंकि वो उस टाइम उन्हें बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे. आई फेल टू मेक एन इम्पैक्ट, और उन्होंने उन पे इम्प्रेशन नहीं डाल सके उनके सर पर. After I had finished batting, sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was little older. फिर जब वो सचिन उनके एक्सपेक्टेशन को नहीं पहुंच पाया एक्सपेक्टेशंस तक, तो उसके सर आचेकर ने उनके ब्रदर अजीत को बगल में बुलाया और बताया कि अभी वो बहुत ही छोटा है इस कैंप के लिए, आप उसे ले जाए और अगले साल लेकर आए जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा. I wasn't party to this conversation and had no idea what was discussed at that time. My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure but for Ajit's insistence. So ये तो कोई पार्टी वाली कन्वर्सेशन तो नहीं हो रही थी. मुझे कोई आइडिया भी नहीं था वो क्या डिस्कस कर रहे थे उस टाइम पे. मेरी जो इंडक्शन थी मुंबई क्रिकेट सर्किट में जाने का मुंबई टीम में, वो तो फेलियर ही लग रही थी. बट फॉर अजित इंसिस्टेंस, पर वो अजित के इंसिस्ट करने पर गए थे. हैविंग सीन मी प्लेइंग इन द कॉलोनी, अजित न्यू आई वॉज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फार बेटर देन आई हैड इन फ्रंट ऑफ आचिकर सर. अजित जो उनके ब्रदर थे वो उनको डेली कॉलोनी में खेलते हुए देखते थे, तो उन्हें उन पर बिलीव था कि नहीं, ये उन पे सचिन में इतना कैपेबिलिटी है कि वो इससे भी अच्छा बेटर परफॉर्म कर सकता है. जितना ख़राब उन्होंने आचिकर सर के सामने किया था, मतलब उससे भी कहीं अच्छा वो परफॉर्म कर सकता है. एक्सप्लेन दैट आई वॉज नर्वस एंड आस्क्ड सर टू गिव मी वन मोर अपॉर्चुनिटी. फिर अजीत उनके ब्रदर ने सर को समझाया कि वो बहुत ही नर्वस हो गया था, सर आप उसे एक और चांस देकर देखें. However, he suggested that while doing so, sir should pretend to go away and then watch from a distance. तो उन्होंने कहा कि जब वो खेलेंगे तो आप सर को मतलब ऐसा प्रिटेंड करने को कहा गया जैसे वो दूर में खड़े हो और मैच जो है बहुत डिस्टेंस से देख रहे हो. सर अग्रीड. बिफोर लॉन्ग आई वॉज आस्क्ड टू बैट अगेन. Before long, I was asked to bat again, and without sir's trained eyes scrutinizing me. Or so I thought. I felt more at ease and soon started to hit the ball well. और बहुत पहले जब फिर से बैटिंग करने को कहा गया था मुझे विदाउट सर, उन्हें लग रहा था कि सर उनके आसपास नहीं है, तो वो क्या किए, सर की जो ट्रेन स्क्रूटिनाइजिंग आइज थी एग्ज़ाम में, वो सर जो थे वो उन्हें पूरी तरह से एग्ज़ामिन कर रहे थे, वो उन्हें पूरी तरह से देख रहे थे, लेकिन इन्हें लग रहा था कि वो नहीं देख रहे. सो इससे उन्हें बहुत ज़्यादा ईज़ फील हुआ और बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ और वो बहुत ही अच्छा से बैटिंग करने लग रहे थे. दिस टाइम सर एग्रीड टू लेट मी जॉइन द कैंप. और इस टाइम जब वो बैटिंग कर रहे थे तो सर मान गए उन्हें कैंप में लेने के लिए. I was delighted and I must say it was an opportunity that transformed my life. और इतनी डिलाइटेड मोमेंट थी कि और मैं बोल नहीं सकता, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल सकती जो मेरी लाइफ बदल दी. Participants in the summer camp had to pay an admission fee of 65 rupees, less than a pound, and a monthly fee of 10 rupees. In my case, I don't remember having to pay the monthly fee after the first few months. The camp involved a session every morning and evening at Shivaji Park. पार्टिसिपेंट्स को समर कैंप के लिए एडमिशन फ़ी देना पड़ता था 65 रुपीज़ और मंथली फ़ी जो था वो 10 रुपीज़ था. और उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है कि उन्हें कुछ ऐसा पे करना पड़ा हो सचिन को. The camp involved a session every morning and evening at Shivaji Park. I would practice between 7:30 a.m. and 10:30 a.m. जो कैंप जो थी वो
हर सुबह एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग को शुरू होती थी। उसका सेशन जो था मॉर्निंग और इवनिंग में था, शिवाजी पार्क में होता था और सचिन 7:30 AM और 10:30 AM के बीच में प्रैक्टिस करते थे। बिफोर मेकिंग माई वे होम फॉर लंच, देन आई वुड कम बैक इन द आफ्टरनून एंड ट्रेन टिल लेट इवनिंग। वो एक बार लंच करने जाते थे दोपहर में, फिर वो रिटर्न आकर आफ्टरनून से लेके पूरे शाम तक वो प्रैक्टिस करते थे। द शेड्यूल वॉज रिगोरियस एंड आई वुड बी एग्जॉस्टेड बाई द एंड ऑफ द डे। वो शेड्यूल था बहुत ही हेक्टिक था, जिससे वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते थे और मतलब एट द एंड ऑफ द डे बहुत ही ज़्यादा थक जाते थे। ट्रैवलिंग टू शिवाजी पार्क took 40 minutes from my house in Bandra and I had to catch an early morning bus to make it on time. शिवाजी पार्क तक उन्हें ट्रैवल करने में पूरा 40 मिनट्स लगता है उनके घर से, बैंड्रा से, और वो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग बस पकड़ते थे ऑन टाइम, तब जाके वो पहुंच पाते थे। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज Ajit accompanied me to get me used to the routine, but once I was familiar with the routine, with the journey, I would travel to the camp on my own. पहले जब इनिशियल स्टेज में ये ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे तो उनका ब्रदर अजीत उनको एक्कम्पनी करते थे, उनके साथ जाते थे ताकि वो इस रूटीन से यूज़ टू हो जाए। और जैसे वो इस रूटीन से यूज़ टू हो गए, वो अपने आप ही कैंप पर चले जाते थे खुद। और ड्यूरिंग दी बस जर्नी ही वुड टॉक टू मी अबाउट द न्यूएंसेस ऑफ बैटिंग। और इस बस जर्नी के दौरान उनके ब्रदर सचिन से बहुत सारी बैटिंग के बारे में बात करते थे, छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्हें बताते थे। एंड आई ऑलवेज एन्जॉयड दिस कन्वर्सेशन अलॉट। और सचिन को उनकी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। इन फैक्ट द वन थिंग दैट आई हैव केप्ट विद me all my career as a note that Ajit gave me containing some thoughts about batting। और उनके पूरे करियर में कुछ उनके साथ उन्होंने रखा है, तो ये सारी बातें अजीत उन्हें जो कहा बैटिंग के बारे में, सब के बारे में जो थॉट्स उन्हें सिखाए हैं, ये सारी बातें वो उनके पूरे करियर में याद रखे थे। इट सर्व्ड एज अ वेरी पर्सनल कोचिंग मैनुअल। और ये सारी बातें उन्हें बहुत ज़्यादा काम आई एज अ पर्सनल कोचिंग के दौरान। As a child, I had only one set of cricket clothes, and the routine was to wash them as soon as I would return home from the morning session। और बचपन में उनका बस एक ही सेट ऑफ क्रिकेट क्लोथ्स था। उनका रूटीन था कि वो जैसे ही घर, जितना जल्दी होके जैसे वो कोचिंग ख़त्म करके घर पहुँचे तो उन्हें धोकर सुखाने का। जैसे वो मॉर्निंग सेशन से रिटर्न होते थे, उनका काम था कपड़ा धोना। वाइल आई हैड माई लंच, द क्लोथ्स वुड ड्राई आउट इन द सन एंड आई वुड वेयर देम अगेन इन द आफ्टरनून। और जैसे ही मॉर्निंग सेशन से वो रिटर्न आते थे, उनका काम था वो कपड़े धोकर सुखाना, और जब तक वो लंच करते थे वो कपड़े सूख कर दोपहर की कोचिंग के लिए रेडी हो जाते थे धूप में। I would wear them again in the afternoon। वो उन्हें आफ्टरनून में फिर से पहन लेते थे। The pattern was repeated in the following morning। और ये पैटर्न हर मॉर्निंग यही पैटर्न रिपीट होता था उनका। द सिस्टम वर्कड वेल अपार्ट फ्रॉम माई पॉकेट्स। ये सिस्टम बहुत अच्छा काम किया सिर्फ मेरे पॉकेट्स छोड़कर। देयर वॉज नेवर क्वाइट इनफ टाइम फॉर द पॉकेट्स टू ड्राई आउट कम्प्लीटली फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कैंप। आई प्लेड विथ वेट पॉकेट्स। बाहर तो पूरा कपड़े सूख जाते थे, लेकिन जो इनर के पॉकेट्स थे वो भीगा रह जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें कभी इतना टाइम मिला ही नहीं कि वो पूरी तरह सूखे। और मैंने ऐसी बहुत सारी उनका जो मैचेस था वो ऐसे ही खेले हैं। उनकी बहुत सारी वो कैंप के जो मैचेस था वो वेट पॉकेट्स के साथ ही खेले थे। सो इट्स एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स Sachin's autobiography। So students, here is the complete chapter of Sachin Tendulkar, the Master Blaster. Kindly read the chapter thoroughly, understand it. If you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video. And in the next video, we are going to discuss the question and answers of this chapter.